بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا نور عالم خان صاحب کی سربراہی میں، اور آج انہوں نے نیب کے جو قائم مقام چیئرمین ہیں ان سے کہا ہے کہ تمام افسران کے جو اثاثہ جات ہیں ان کی تفصیلات وہ فراہم کی جائیں۔ جو ڈی جی نیب سندھ تھے ان کی طرف سے کوئی ایک اعتراض بھی سامنے آیا کہ ہم کو ملزم ہیں۔ نور عالم صاحب نے کہا کہ یہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن چونکہ آپ سرکاری ملازم ہیں لہٰذا اثاثے تو آپ کو دینے پڑیں گے، اپنے بھی، اپنے ماں باپ کے بھی، بہن بھائیوں کے بھی، جو ہے تاکہ پتہ چلے کہ کس کی کیا صورتحال تھی۔ تو یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے جو آج پی ایس سی کے اندر ہوئی ہے۔ وفاقی کابینہ نے آسٹیریٹی کمپین اناؤنس کی ہے، کیبنٹ ممبران کے 40% جو فیول ہے وہ ریڈیوس کر دیا ہے، بین الاقوامی جو دورے ہیں وہ بند کر دیے ہیں، ہفتے کی چھٹی بحال کر دی ہے، اور اس طریقے کے اقدامات ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے اب سے کچھ دیر قبل ایک جو تقریب تھی اس میں کہا کہ شاید پیٹرول کی قیمت مزید کچھ بڑھانی پڑے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ معیشت بٹھا دی ہے انہوں نے، اور آئی ایم ایف کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، بجٹ بھی ان کی مرضی کے بغیر بن رہا ہے۔ تو یہ صورتحال، اس پہ آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ شیخ رشید صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں، رہنے چاہیے، فیصلہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ فیصلے کی جو چابی ہے وہ خان صاحب کے پاس ہے۔ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ گرینڈ ڈائیلاگ کی جو پیشکش ہے اس کے اوپر کیا صورتحال ہے، وہ کیا کلک ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پنجاب میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ایک کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے جو ضمنی انتخابات ہیں وہ مل کر لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام صورتحال پہ گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما محترم ندیم افضل چند صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سابق ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور صاحب، اور دی نیوز کے ایڈیٹر سینئر صحافی محترم جناب عامر غوری صاحب۔ چند صاحب، پہلے تو یہ ہے کہ جن کی حکومت گئی ہے ایسا لگتا ہے انہیں بھی یقین نہیں آ رہا، اور جن کو حکومت مل گئی ہے ان کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ ہمیں مل گئی ہے۔ دونوں ایک عجیب سی کیفیت میں ہیں، کیا ایسا کوئی منظرنامہ ہے؟ دیکھیں، بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی۔ حکومتوں میں کبھی جلسے نہیں ہوا کرتے تھے، جلسے اور یہ جو تھا چیزیں یہ الیکشن میں ہی ہوتی تھیں، اور پھر چلو کبھی لانگ مارچ ہوتے تھے تو ایک آدھ لانگ مارچ ہر حکومت کو فیس کرنا پڑا ہے۔ یہ ہماری کیونکہ ڈیموکریسی ابھی اتنی سٹرانگ نہیں ہوئی، اتنی مضبوط نہیں ہوئی، ٹرانزیشنل فیز میں ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بھی اس کا ایک اس کا حسن تو نہیں کہہ سکتا میں، آپ سمجھو اس کی خوراک ہے، کمپلشن ہو گئی ہے کہ جی یہ لانگ اس کے مضبوط ہونے کی ایک خوراک ہے کہ یہ لانگ مارچ۔ اللہ کرے یہ ملک ہمارا اتنا، ہماری معیشت، ہماری جمہوریت، ہمارا پارلیمانی روایات مضبوط ہو جائیں کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہ پڑے سوائے الیکشن کے۔ لیکن دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں چیزیں، دونوں فریقین اس لیے ہیں کہ خان صاحب کیونکہ پی ٹی آئی کا حصہ تھا تو موسٹلی لوگ کہتے تھے کہ 2028 تک ہم ہیں، پوری پلاننگ تھی ایک 2028 تک، ہر حکومت کی ہوتی ہے، لیکن یقین تھا، یقین دلا دیا گیا تھا، کچھ ایکسٹرا یقین دلایا بھی گیا تھا۔ تو جب 2028 کا بندہ سوچ رہا ہو اور اچانک پہلا ٹرن اوور بھی مکمل نہ ہو، تبھی یقین نہیں آ رہا۔ اور میں تو آج بھی کہوں گا، میں تو کیبنٹ میں، مجھے الحمدللہ میں واحد تھا جو خان صاحب کہتا تھا کہ آپ کو گند گلی میں پھینکا جا رہا ہے، آپ کو گند گلی میں بند کیا جا رہا ہے، اور آپ پولیٹیکل ڈائلاگ کریں پولیٹیکل فورسز کے ساتھ، اور یہ پھر آپ جا کے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ لیکن میجارٹی لوگ جو ہمارے ساتھی تھے، دوست تھے، وہ اس چیز کی مخالفت کرتے تھے۔ کچھ جو حق میں بھی تھے وہ کھل کے خان صاحب کے سامنے رائے نہیں دیتے تھے، خان صاحب کی طبیعت دیکھ کے رائے دی جاتی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ المیہ ہے ہمارے پولیٹیکل کلاس میں بھی، اور یہ ہماری انفارچونیٹ ہے کہ ہم پولیٹیکل فورسز آپس میں ڈائلاگ نہیں کرتے، کسی اور کے اشارے کا انتظار بھی کرتے ہیں، کسی اور کے مدد بھی مانگتے ہیں۔ جس طرح شیخ رشید صاحب کا ابھی آپ پرومو چلا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہمارے وہ بانگے دول کہتے ہیں، حالانکہ یہ چیز میں سمجھتا ہوں جو سیاستدان یہ کام بات کہے ڈسکریڈٹ اس کے حصے میں جانا چاہیے، اس کے مائنس نمبر ہونے چاہیے کہ بھائی آپ کیوں اسٹیبلشمنٹ کو اوپن دعوت دے رہے ہو، آپ کیوں ان چیزوں کو درمیان میں لا رہے ہو سیاست کے اندر، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ یا تو آپ پھر ہم سیاست چھوڑ دیں، پھر ہم سیاستدان ہم مان لیں، ہار مان لیں، قوم ہمارے اوپر اعتماد کرتی ہے، جیسی لولی لنگڑی جمہوریت ہے، عوام آپ کو ووٹ دیتے ہیں، عوام کی توقعات بھی ہمارے سے ہیں، عوام ہمارا احتساب چاہیں گے، عوام چاہیں گے کہ ہم دوسروں کا احتساب کریں، ہمارے ذمہ داری ہے۔ تو یہ ہم اپنا فیلئر یا اپنی کہتے ہیں نا جی اپنا نہیں دکھانا چاہیے، اپنی
लोगों को कि हमारी सूरत हाल क्या है, हमें लोगों को होप देनी चाहिए। जब आप मायूसी देते हैं ना लोगों को, तो फिर इसी तरह की गैर यकीनी सूरत हाल बनती अच्छा है। चंद साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब वो गलत होप दे के ही तो खान साहब का ये हाल नहीं हुआ। लोगों का एक आर्गूमेंट है कि खान साहब ने होप इतनी हाई कर दी थी कि जब आप आए हैं तो फिर वो रियलिटी देखिए से खान साहब माशाल्लाह अच्छी जो है ना, उनकी एक चीज माननी पड़ेगी, जो मीडिया मैनेजमेंट, जो नैरेटिव बनाना और जो प्रोपेगेंडा करना, और उनकी सोशल मीडिया टीम, उनकी जो मीडिया टीम है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं क्योंकि खुद उसका हिस्सा रहा हूँ, वो बड़ी मेहनत खान साहब उसके ऊपर करते हैं, और ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में इतनी मेहनत नहीं होती, तो उसका फायदा भी होता है उनको। रहेगी बात गवर्नमेंट की मशीनरी की, गवर्नमेंट ने डिलीवर क्या किया, तो ये एक बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। इसमें देखें लोकल बॉडी से लेकर फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, फिर फेडरल गवर्नमेंट्स। तो फिर खान साहब तब्दीली के लिए आए थे, जो लोगों की होप्स थी वो नॉर्मल रवायती तरीके वाली होप्स नहीं थी। वो होप्स थी कि खान साहब आएंगे और कुछ गैर रवायती काम करेंगे, सिस्टम चेंज, लेकिन काम वो रवायती तरीके से ही होते रहे। रवायती तरीके से इस मुल्क में तब्दीली मैं भी आज भी समझता हूँ कि नहीं जल्दी आ सकती। हसन खबर साहब, ये आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा कि आपकी हुकूमत ख़त्म हो गई है, और यकीन ना आने की वजह से आप चाहते हैं कि फौरी तौर पे बस इलेक्शन कराएं ताकि दोबारा हुकूमत में आ जाएं? घर भी लोग खाली नहीं करते, गाड़ियां भी वापस नहीं करते, वो कहते हैं जी हमने आ ही जाना है हुकूमत में, जैसे पहले यकीन था 2028 तक हुकूमत में रहना है। तारिक साहब, एक तो मेरा नहीं ख्याल कि यकीन ना आने वाली कोई बात है इसके अंदर, और मैं तो समझता हूँ, मैं उस पर आता हूँ। पहले आपने एक इशारा जिस तरफ किया कि घर नहीं खाली करते, मुझे किसी की जाती सिलसिला तो मुझे नहीं पता। अमूमन होता ये था कि जब हुकूमत अपना टाइम पूरा करती है तो लोग जाहिर है कि बीच में फिर एक इंटरम पीरियड आता है, नए इलेक्शन होते हैं, वज़रा जो है बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, घरों में रहते हैं, 2-2.5 महीने का टाइम मिल जाता है एक ट्रांजिशन के लिए। किसी भी शख्स को अगर आप ये कहें किसी भी घर में रह रहा हो कि एक हफ्ते में खाली कर दो और डिस्प्लेस कर दो, मेरे ख्याल में प्रैक्टिकल सी बात है। मुझे नहीं पता किसने इनकार किया, किसने नहीं किया और क्या वजूहत थी, लेकिन जनरली ऐसे होता है। और इसको मेरे ख्याल में ये रंग नहीं देना चाहिए कि वो निकलना नहीं चाहते कोई वहां से। फवाद चौधरी साहब कहते हैं चोरों को क्यों दे दे ये गाड़ियां, ये घर भर जो है ना ये चोर हैं, इनके हवाले क्यों करें? फवाद चौधरी साहब ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट। चले वो तो उन्होंने एक बात कह दी, लेकिन मैं आपको वजह जेन्युइन बता रहा हूँ जिस तरह होता है। बाकी तो ये बिल्डिंग खाली होती है, लोग आते हैं, मक्खियां आती है, यही दुनिया का असूल भी यही। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पार्टी का मुतालबा तो एक तरफ, लेकिन देखें कुछ कुछ सच और कुछ हकाइक भी, और सच और हकाइक ये है कि पाकिस्तान की मीशत इस हाल में है। इस वक्त टफ फैसले करने की जरूरत है, इस वक्त मीशत को बहाल करने की जरूरत है। इस वक्त कमजोर हुकूमत जो है ये काम नहीं कर सकती, इररिस्पेक्टिव जो हमारा फ्यूड है, जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। पाकिस्तान की किस्मत के लिए फैसले, निगोशिएशन, इसको बहाल करना एक ऐसी हुकूमत नहीं कर सकती जिसमें 10, 12, 15 लोगों ने मिल के फैसले करने हैं, कॉम्प्रोमाइजेस करने हैं, कभी लंदन की तरफ देखना। जाहिर है मुस्लिम नून का पार्टी का एक स्ट्रक्चर है, वो कोई बड़ा फैसला करने से पहले बड़े मियां साहब की ब्लेसिंग लेना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा फैसला करना है तो वो आसिफ अली ज़रदारी साहब से पूछना चाहते हैं, जो कोलिशन ने लेना है। वो चाहते हैं जिम्मेदारियां शेयर हों। आसिफ अली ज़रदारी साहब भी समझते हैं कि वो तो वज़ीर आज़म नहीं है, वो एक डिसप्रोपोर्शनेट वेट नहीं उठाना चाहते। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमने देखा कि पिछले 50 दिन के अंदर सूरत हाल बद से बदतर हुई और चीजें बिगड़ती गई। एक ये वजह थी। अच्छा, दूसरी वजह एक और भी थी। दूसरी वजह ये थी कि दुनिया भर के अंदर कोरोना के बाद से एक बहुत बड़ा मुआशी बहरान, और वो मुआशी बहरान जो था उसके अंदर हमारी हुकूमत की, हमने भी टफ फैसले लिए थे, लेकिन जिस तरह पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है, और अब तो मीडिया भी उसका गवाह है, आप सब जानते हैं कि पेट्रोल 2 रुपए बढ़ रहा, 3 रुपए बढ़ रहा, तो लोगों को ये फीड किया गया कि महंगाई बड़ी बदतरीन है और ये महंगाई जो है ये लोगों पे पेट्रोल बम है। अच्छा, सच हकीकत उससे बरक्स थी। अब आप देखें ना कि जब लोगों को फीड कुछ और किया गया, उम्मीद कुछ और दिखाई गई, अब पेट्रोल हम देखते हैं कि जी 60 रुपए बढ़ गया, डीजल 60 रुपए बढ़ गया, घी 380 से 555 हो गया, कुकिंग ऑयल 600 से बढ़ गया। कुछ चीजें इसके अंदर जस्टिफाइड होंगी, कुछ चीजों के अंदर शायद इसको रोका भी जा सकता है, लेकिन बुनियादी फर्क ये है कि लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन फीड की गई। अब ये फैसले करने हैं। अच्छा, पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है वो और भी दगरगू है। पंजाब की हुकूमत एक बड़ी डोरी से लटक रही है। तो ये सारी सूरत हाल ऐसी है कि अगर ये गैर यकीनी सूरत हाल चलती रहती है
یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں سنسیئرلی یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ صرف میں ایز پی ٹی آئی کا ریپرزینٹیو یہ بات نہیں کر رہا. یہ صورتحال ایسی ہے کہ یہ کوئی اسٹیبل گورنمنٹ اگر نہیں ہوگی, لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہوگی, تو شاید یہ مشکل فیصلے نہ لے سکے اور آگے جا کر اور کمپلیکیشن پیدا ہوں. غوری صاحب, یہ انسرٹینٹی جس کا ذکر کر رہے ہیں حسان خاور صاحب, یہ انسرٹینٹی آپ کو ختم ہوتی نظر آتی ہے؟ کیونکہ ایک تاثر یہ ہے کہ اب شاید چائنا والا جو 2.4 بلین ہے وہ دوبارہ ہو گیا ہے, کچھ قطر سے LNG جو ہے وہ ڈیفر پیمنٹ پہ آ رہی ہے, IMF کا پروگرام ہمیں جو ہے نا وہ مل رہا ہے, تو ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ بہتر ہوگی, تو پھر سیاسی جو ہے انسرٹینٹی ختم ہوگی. ایسا لگتا ہے آپ کو یا نہیں, ایسا ہی معاملہ چلے گا؟ طارق بھائی تھینک یو ویری مچ. دیکھیں یہ تو جو اکانومی کا حال ہے وہ تو اس تک فکس نہیں ہوگا جس وقت IMF کے ساتھ فائنل ڈیل جو ہے وہ طے نہیں ہو جائے گی. اس کے لیے جو کچھ کرنا تھا وہ کر رہے ہیں, یعنی عوام کی کو جو بھی جس پریشر کے تحت بھی انہوں نے لے کے آنا تھا وہ لے آئے ہیں آلریڈی. اس میں تھوڑا سا اور مزید اضافہ ہوگا, پیٹرول کی اور گیس کی اور شاید بجلی کی قیمتیں مزید بڑھائی جائیں گی, اور وہاں تک جایا جائے گا جس کے بعد IMF یہ کہے کہ یس ٹھیک ہے فائنلی جب سبسڈیز نکال دی گئی ہیں تو اب جو ہے بات کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ان کی جو امیدیں ہیں چائنا سے یا مڈل ایسٹ کے بعض ملکوں سے, ان کے اندر شاید کوئی ایکٹیویٹی نظر آئے گی. جہاں تک سیاسی آپ نے کہا نا جو انسرٹینٹی ہے, دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی تک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ انہوں نے حکومت جو ہے وہ ایک آئینی اور قانونی طریقے سے لوز کی ہے. وہ مطلب کسی کو الزام دے رہے ہیں, کبھی اس طرف لیفٹ رائٹ سینٹر, جو کچھ ہم نے دیکھا ان کا یہ جو کوشش تھی مطلب بار بار دریائے سندھ پار کر کے اور اسلام آباد پہ حملے کی, وہ بھی ناکام ہو چکی ہے. وہ واپس آ چکے ہیں بنی گالا. تو اب جو حکومت ہے اس کو یہ فوکس کرنا ہے کہ اگر فرض کیا انہوں نے ساری ذمہ داری لے لی ہے, اور یہ ذمہ داری اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کہ یہ سارے لوگ پہلے حکومت کر چکے ہیں, صوبائی بھی اور قومی بھی, تو ان کو تو یہ پتا ہے کہ کون سی چیزیں فکس کرنی ہیں, کس طرح فکس ہوں گی. تو ان کے اوپر جو نظر ہے, چونکہ ساری کی ساری پولیٹیکل فورسز جو 70% کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, ان کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ عمران خان صاحب تو کچھ کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے, وہ ایک طرف ہیں اور یہ باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک طرف ہیں. تو اگر وہ یہ سارا کچھ ڈیلیور نہیں کر سکیں گی اور پھر الیکشن جب مرضی ہوں گے, تو میرا خیال مقابلہ جو ہے نا وہ خان صاحب کو اپنی پارٹی کو فکس کرنا ہے اور ان لوگوں کو ملک کو فکس کرنا ہے. تو دونوں کے لیے چیلنج جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہے. ٹھیک. چند صاحب, اب جب یہ اپوزیشن میں تھیں یہ اتحادی حکومت, یہ چوکے چھکے خوب مارے انہوں نے جی, پیٹرول بڑھا دیا, مہنگائی اتنی کر دی, فلانا کر دیا, حکومت مل گئی اچانک سے. اب جو ہے نا وہ جو حسان خاور صاحب کہہ رہے ہیں جی 50 روپے سے اوپر پیٹرول ڈیزل, یہ جب آپ حکومت پہ بیٹھے ہیں, خان صاحب نے بھی ایسی بہت ساری باتیں کی, IMF میں نہیں جاؤں گا, خودکشی کر لوں گا. جب حکومت میں آتے ہیں ریئلائزیشن ہوتی ہے سچویشن کی. اس کا سیاسی ملبہ کتنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں جی, ریالٹی تو یہ ہے کہ سیاسی ملبہ تو ساری پولیٹیکل فورسز پہ پڑ رہے ہیں. خان صاحب پہ بھی ہے کیونکہ انہوں نے 4 سال حکومت کی ہے اور وہ اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر سکے جس طرح سے لوگوں کی توقعات تھی. جیسے جیسے وقت گزرے گا خان صاحب پہ کم ہوتا جائے گا. اور دوسرا موجودہ حکومت پہ بھی بالکل بہت بڑا چیلنج ہے. وہ اس لیے ہے کہ یہ ایک تجربہ کار لوگ ہیں اور لوگوں کی توقعات ہیں کہ یہ حالات ٹھیک کریں گے. اور دوسرا اپوزیشن جو اس وقت کی اپوزیشن ہے وہ کیونکہ ان کا بیانیہ ایک اپنا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے بیڈ ریپیوٹڈ لوگ ہیں, وہ یہ میسج دیتے ہیں. لیکن لوگوں کو جو اتحادی جماعتوں کے حمایتی ہمارے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیلیور کریں گے. ان کے اوپر ان کو پتہ ہے کہ فارن پالیسی کیسے چلانی ہے, ان کو اکنامک ریفارمز کا پتہ ہے. اور دیکھیں مشکل حالات لیکن بہت زیادہ ہے. ایک سب سے بڑا مشکل تو یہ ہے کہ ملک میں غیر یقینی کی صورتحال بنائی گئی ہے اس وقت, اور اس وجہ میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. اپوزیشن اگر غیر یقینی صورتحال کو مزید طول دیتی ہے تو پھر برے حالات کے ذمہ دار بھی وہ ہوگی. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ریفارمز, ان کو ایجنڈا اپنا واضح کرتے ہیں, ہم الیکشن چاہتے ہیں, الیکشن ریفارمز کے بغیر کوئی بے سود ہے, وہ الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں, بے شک جائیں, لیکن اپنی آئینی مدت ایک پوری کرنے دیں حکومتوں کو, اسمبلیز کو, اسمبلی کے اندر بیٹھیں آ کے پارٹیسپیٹ کریں. PTI کو کبھی بھی ریزائن نہیں کرنے چاہیے, نہ ان کے سیاسی فائدے میں ہے, اور جس نے بھی یہ ان کو مشورہ دیا ہے اس نے کوئی عقل مندانہ مشورہ نہیں دیا. ویسے کس نے دیا ہوگا چند صاحب, آپ تو بڑے قریب تھے, مشورے ویسے سنتے کس کے تھے؟ 5-6 لوگ ہیں, نہیں سنتے ہیں خان صاحب, ایسی بات بھی نہیں ہے. 5-6 لوگ ہوتے ہیں جو ہاکس ہوتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ قیادت کا موڈ دیکھ کے وہ رائے دیتے ہیں, تو وہ پھر ایکسٹریم لائن لے لیتے ہیں. لیکن جو پولیٹیکل لوگ ہیں اگر ان کی رائے مانی جاتی, جس طرح شاہ محمود صاحب ہیں یا اسد عمر صاحب ہیں یا فواد چودھری بھی پولیٹیکل رائے رکھتا ہے,
ऐसे लोगों की सरवर खान साहब हैं, ये और मेजर तैयब सादक है, ये बहुत सारे परवेज खटक साहब हैं, ये सारे पॉलिटिकल लोग जिन्होंने फील्ड से सियासत की हो, उनसे 1985 वाला दौर भी देखा लोगों ने, पीपल्स पार्टी को जो नुकसान हुआ था बाइकाट करने में। फिर साबका दौर में भी जब पीटीआई ने रिजाइन किया फिर वापस आई, तो कितनी मुद्दत बाद अब भी पीपल्स पार्टी तो आखिरी दम तक कोशिश कर रही है कि उनके इस्तीफे ना हो और वो वापस आए। और मेरे ख्याल में उनको अल्टीमेटली आना चाहिए, सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए, अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए, और उनके आने से मुल्क से गैर यकीनी सूरत हाल खत्म हो जाएगी। लेकिन गैर यकीनी सूरत हाल उनकी सियासत को सूट नहीं करती है। देखिए, फिर आप या सियासत कर लें या इस मुल्क की खैर कर लें, रियासत या सियासत। अगर आप रियासत को फलता फूलता देखना चाहते हैं तो फिर आपको अपना जाती एजेंडा, आपको अपना जो पॉलिटिकल एजेंडा है उस पर जरा कंप्रोमाइज करना पड़ता है मुल्क की बेहतरी के लिए, असूलों की बुनियाद पर। हुकूमत को भी करना पड़ेगा, बिल्कुल करना चाहिए, हुकूमत को डायलॉग करने चाहिए, हुकूमत दावत दे रही है और हुकूमत को बार बार पहल करनी चाहिए, हुकूमतों का हक बनता है पहल करना। क्यों यही बात आप खान साहब से कहते थे जब वो मैं तो अभी वही मौकफ है मेरा, तो मैं समझता हूं अब इस हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ये पहल करे और पीटीआई को। वो कहते हैं आप कमजोर हुकूमत है, जो हसन खावर साहब कह रहे हैं ये चल नहीं सकती, तो खान साहब की कितनी मेजोरिटी थी? अब वो भी 8 पार्टियों की हुकूमत थी, कितनी मेजोरिटी कितनी थी? 4-5 वोटों की मेजोरिटी थी इत्तेहादी जमातों को मिलाकर, और 14 वोटों की गालबन मेजोरिटी थी। तो उसके बाद अपोजिशन ने साथ दिया। जब पीडीएम ने कहा कि रिजाइन करें, सिस्टम को डिरेल करें, पीपल्स पार्टी खड़ी होगी सिस्टम के साथ। पीपल्स पार्टी को मीडिया के लोगों ने भी, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स ने ताने भी दिए कि ये हो गया वो हो गया। बिल आखिर बिलावल भुट्टो साहब की बात मानी गई, एक उसी अदम एतमाद हुई। यही पहले दिन से वो कहते थे कि जो आइन और कानून के अंदर चीजें हैं उन पे चले। अभी भी जो आइन और कानून के अंदर चीजें हैं उस पर मैं समझता हूँ पीटीआई को अपना स्टांस लेना चाहिए। आप चले नहीं है, चलाया गया आपको उसके ऊपर। देखिए, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, चले या चलाने वाली बात जो है इस वक्त ये रहने दे, सबको पता है, अब तो पूरी कौम को पता है। और ये अच्छी बात हुई है, इस जमहूरियत के लिए अच्छी चीज हुई है कि लोगों को भी, अब आम लोगों को भी कानून का भी पता चल गया है, पावर कॉरिडोर का भी पता चल गया है, एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन का भी पता चल गया है, मीडिया के रोल का पता चल गया है, कौन सा मीडिया हाउस किसके साथ है ये भी पता चल गया है कि सहाफी भी पार्टी होते हैं, सहाफी नहीं होते। अच्छा, सियासी जमातें चाहे आइन और कानून पे चली हैं या चलाया गया हुआ अच्छा है, आप ये कहते हैं? मैं समझता हूँ जी, चलना तो खुद ही चाहिए, ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि कोई चलाए। इस पे मैं तो कभी भी इस चीज को एप्रिशिएट नहीं करूंगा। लेकिन अगर चलाया भी गया है या चली भी है तो ये बदकिस्मती है इस मुल्क की, लेकिन अल्लाह करे हमारी मंजिल अच्छी हो, इस मुल्क के लिए बेहतरी हो। खबर साहब, सियासत या रियासत, आप जो है वो सियासत कर रहे हैं, रियासत आपकी प्रायोरिटी नहीं है, जिसकी वजह से आपको रियासत की प्रायोरिटी सामने रखे, ग्रैंड डायलॉग की ऑफर को कबूल करें, बात करें जो कोर इश्यूज, क्योंकि आप हुकूमत से अभी हटे, आपको सब हकाइक का पता है। अच्छा, एक तो मैं चांद साहब की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ है कि जो कुछ भी है अब सब कुछ लोगों के सामने है, हर एक का किरदार, मीडिया का भी, सहाफियों का भी, हर एक का। देखें, जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, बात खुलेगी नहीं, ये मुल्क रिफॉर्म नहीं होगा। तो ये बड़ी खुशहाल बात है, ये तो मैं इनसे 100% मुत्तफिक हूँ। दूसरी बात, जो आपका सवाल है ना कि सियासत या रियासत, मेरा नहीं ख्याल कि सियासत या रियासत को आप अलग अलग रख सकती हैं। सियासत और रियासत दोनों आपके मुल्क की चीजें हैं, और मेरा नहीं ख्याल, अल्लाह ना करे कि सियासत कभी रियासत। लेकिन देखें, प्रैक्टिकली बात क्या है? प्रैक्टिकली बात यह है कि हमारी हुकूमत ने पिछले 3.5 साल मुश्किल के गुजारे। पूरी दुनिया बंद थी, पाकिस्तान बंद था, मुश्किल फैसले, पूरा IMF का प्रोग्राम, उसके कंट्रोवर्स आज भी वही है। अच्छा, जो हम लोगों ने जिस रिफॉर्म की तरफ गए, उस वक्त की जो अपोजिशन थी, उन्होंने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, गवर्नमेंट को अनस्टेबल करने के लिए उसके खिलाफ फैसले दिए। स्टेट बैंक का कानून आया, आज वो स्टेट बैंक के कानून में कोई मसला नजर नहीं आता। मैंने आपको पेट्रोल की पहले बात की, 3 रुपए पे फर्क था, आज 60 रुपए और मजीद बढ़ने जा रहा है। 2 डोजेस लग चुकी हैं, बूस्टर डोज अभी लगनी है, कोई किसी को मसला नजर नहीं आ रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ, अब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि खान साहब को आप निकाल दें और खान साहब आके कहें कि जी ठीक है, हम लोग जब ये कर रहे थे तो गलत था, आपने हमारी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया, और लेकिन आपके मुश्किल फैसले जो कि आपने कई गुना मैग्नीफाई कर दिए और आवाम के ऊपर वो बम टूट रहा है, हम आपके साथ खड़े हो जाते हैं।
मेरा नहीं ख्याल कि ये रियासत की ऐसी डेफिनेशन तो है जो हुकूमत में लोग बैठे हैं उनको सूट करती है, लेकिन आम आदमी की नज़र में ये डेफिनेशन नहीं है। और मेरे ख्याल में सियासत है अवामी उमंगों का साथ देना, और उसको बहरहाल हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। डायलॉग होना चाहिए इस मुल्क में। मैं समझता हूँ डायलॉग के रास्ते कभी भी बंद नहीं होने चाहिए, लेकिन मैं आपको फिर ये कहूँगा कि वफाक को आप पंजाब से अलग करके ना देखिए। आप ये नहीं कर सकते कि पंजाब के अंदर किसी और तरीके से बात करें, पंजाब वफाक में किसी और तरीके से करें। क्या ये सच नहीं है कि हमारे 5 लोगों को अगर आज इलेक्शन कमीशन नोटिफाई कर दे, जो कि करना चाहिए और उन्होंने नहीं किया, और हम कोर्ट में भी गए हैं, तो पंजाब हुकूमत शायद कायम नहीं रह सकती। तो वहां पे अगर आप पीछे छुपेंगे, वफाक में कुछ और बात करेंगे कि जी हम ग्रैंड डायलॉग करना चाहते हैं, तो ये इस तरह भी नहीं बात चल सकती। मैं आपको फिर ये कहूंगा कि इस क्राइसिस का हल इसीलिए हम समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात। चंद सब कोई कमेंट करेंगे आप? तो देखिए, मैं जो कहते हैं ना जी कि सियासत, यकीनन सियासत सिर्फ ये नहीं होती कि आप अपना पॉलिटिकल, आपने सिस्टम को भी बचाना है। अपोजिशन का भी उतना ही रोल होता है। पार्लियामेंट कैसा होता है, लोगों के वोट लेके आप अपोजिशन का हिस्सा बनते हैं और लोगों की आप उमंगे आपके साथ होते हैं। तो क्या अपोजिशन सिर्फ इसलिए होती है कि वो हुकूमत में आने का इंतजार करे, हुकूमत में आने के तरीके ढूंढे, हुकूमत में आने के टैक्टिक्स इस्तेमाल करे? सिर्फ ये अपोजिशन का रोल नहीं होता। आप देख ले पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी, जहां भी पार्लियामानी निजाम है या सदारती निजाम, अपोजिशन का अपना एक रोल होता है। वो उसमें शैडो कैबिनेट होती है, उसमें रिफॉर्म्स का एजेंडा साथ शामिल होता है, उसमें अच्छी चीजों को सपोर्ट किया जाता है, गलत चीजों को तनकीद की जाती है। तो अपोजिशन और हुकूमत एक गाड़ी के पहिए होते हैं। ये नहीं होता कि अपोजिशन सिर्फ इख्तिदार में आएगी तो एजेंडा उसका कमर दरामद होगा, इख्तिदार में नहीं आएगी। देखिए, लेजिस्लेशन हुई, जितनी लेजिस्लेशन भी हुई, हालांकि पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए नहीं हुई। ठीक, पिंडी वालों के बदाखलत से लेजिस्लेशन पिछले अदवार में हुकूमत तो बैठी नहीं ना अपोजिशन के साथ। लेकिन मैं समझता हूं कि हर मौके पे ऊपर अब भी सियासतदानों को ये सीखना पड़ेगा, वरना हम हमेशा अगर नहीं सीखेंगे, इन चीजों पे हम अमल नहीं करेंगे, तो हम पपट सियासतदान ही रहेंगे। कभी जेन्युइन पॉलिटिशियन आप नहीं बन सकते। जब जेन्युइन डेमोक्रेसी की तरफ आपने जाना है, जेन्युइन सियासतदान बनना है, ठीक है, ये अलग बात है कि कौन आपको लाया, कैसे आप आए, क्या तरीके इख्तियार किए, ये एक हिस्ट्री होती है। लेकिन अल्टीमेटली तो जो हाल की सूरत हाल है, कभी तो यार अपना किबला दुरुस्त कर लेना चाहिए। कानून साजी में जब आप पोजीशन में थे, कहते थे ये जी आर्मी चीफ वाली एक्सटेंशन शायद खाकान साहब ने कहा हम वापस करेंगे। स्टेट बैंक के वाला जो बिल आया, बड़ी डट के आपने मुखालफत की, आपने कहा जी हमारी हुकूमत आएगी हम वापस करेंगे। अब क्यों सांप सूंघ गया? देखिए जी, मैं समझता हूँ कुछ चीजें होती हैं जो बिल्कुल रिवर्सेबल नहीं होती, कुछ चीजें जिनके ऊपर रिफॉर्म्स जरूर होनी चाहिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है जो पीपल पार्टी की डिमांड थी, उस पर जरूर रिफॉर्म्स होंगी। नैब की रिफॉर्म्स थी जो सारी, मैं समझता हूँ ब्यूरोक्रेसी का, मैं उस कैबिनेट का हिस्सा रहा हूँ, खान साहब के दौर में भी ब्यूरोक्रेसी भी, मिनिस्टर्स भी इस चीज की डिमांड करते हैं कि नैब की रिफॉर्म्स होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि वो कहा जाता था कि ये हमारे बयानिए को नुकसान पहुंचेगा। अब बयानिया एक और चीज है, प्रैक्टिकल शेप एक डिलीवर करना, एक हुकूमत चलाना, लोगों के मामलात ठीक करना, ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म्स करना, वो एक और चीज है। गौरी साहब, ये कैसे ब्रेक थ्रू होगा? दो एक्सट्रीम पोजीशन नजर आती हैं। खान साहब को या पीटीआई को लगता है कि अब अगर वो सपोर्टिव रोल में जाएंगे तो फायदा हुकूमत का होगा, शायद उनको सियासी तौर पे नुकसान हो जाए, और अगर ये नहीं होता तो सिस्टम कैसे चलेगा? देखिए, मुझे इस तरह लगता है, और बहुत अरसे से पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, ये इनका वेस्टेड इंटरेस्ट है कि ये इस तरह की सिचुएशन जो है उसको बना के रखें जिसमें हर तरफ जो है वो गर्दो गुबार हो रहा हो, एक दूसरे के ऊपर अटैक्स हों, एक दूसरे के ऊपर जो है, जिस पहले थोड़ी देर पहले चंद साहब जो है वो क्रेडिट दे रहे थे पीटीआई की टीम को कि उनकी मीडिया स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी थी और तारीफ भी कर। मेरा ख्याल है कि उस जमाने में भी जो प्रोपेगेंडा किया गया है और कमाल का प्रोपेगेंडा किया गया है, उसकी कोई सोल्यूशन नजर नहीं आती, तो कोई चीज सेटल नहीं हुई। ये सियासतदान जो है सारे के सारे, आई एम सॉरी, जिम्मेदारी तो इन्हीं की है, लेकिन ये सवाए इस बात से कि अवाम को मुसलसल बताते रहे कि देखें हम आपके वोट लेके आए हैं और आपकी जो बेहतरी है वही हमारा जो है वो काम है, लेकिन इससे आगे जाते नजर नहीं आते। इनकी जो सियासत है वो एक दूसरे के अपने फायदे तो हैं इसमें, लेकिन अवाम का फायदा नजर नहीं आता। वो कहते हैं हम सियासत ही अवाम के लिए कर रहे हैं, तभी तो अवाम हमें वोट देते हैं, तभी तो हम बार बार आते हैं। नहीं तारिक भाई, आज की सियासत अवाम के लिए होती है। देखें, इन सारी पार्टीज को देख लें, आई एम सॉरी, हसान से भी मैं पूछ लेता हूँ, चंद साहब से भी पूछ लेता हूँ कि इनकी जो माशी टीम है वो फुल टाइम काम नहीं करती, इनकी जो लीगल टीम है वो फुल टाइम काम नहीं करती, जो इनकी सोसाइटल सोशल टीम है वो फुल टाइम काम नहीं कर रही थी, इसीलिए इनके पास कोई पॉलिसी नजर नहीं आती
ये सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते रहते हैं उस एक डिक्टम का कि अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है। लेकिन इसे पूछेंगे जब आपको हुकूमत मिल जाती है तो वो कौन से ऐसे काम हैं जिसमें इनको अवाम की बेहतरी नजर आए। अब अगर फर्ज किया सारे के सारा जो 100 रुपए की आपकी इकोनॉमी है टोटल और 250 रुपए की आपकी जो है फर्ज किया इम्पोर्ट्स हो, तो जो बाकी 150 रुपए है उसका बोझ जो है वो आपको देने के लिए कुछ ना कुछ तो प्लान करना पड़ेगा ना। वो उस वक्त तक जब तक अवाम की जेब बड़ी नहीं होगी, कल को देखें अगर सारे लोगों के पास इतने पैसे हों कि वो बिजली और ये पेट्रोल की कीमतों को आराम से सो के तो प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन चूंकि वहां पे ना जॉब्स हैं और ये जो बार बार कहते रहते हैं कि जनाब 60% जो है पाकिस्तान को नौजवानों का पाकिस्तान है, ये सारे के सारे टैक्स नेट के अंदर है नहीं क्योंकि उनकी इनकम इतनी नहीं है। तो कल का जो पाकिस्तान है उसको आप नया पाकिस्तान कहें या बुरा पाकिस्तान कहें, सॉरी टू से, ये हुकूमतें जो है इनका काम बिल्कुल ठीक है। जो पॉलिटिशियंस हैं ये तो आप आके देखें ना पार्लियामेंट्स के अंदर कि जो V8 और V12 गाड़ियों के अंदर पहुंचते हैं वहां पे, मतलब 6-6, 7-7 करोड़ की गाड़ियां, 3-3 करोड़ की गाड़ियां, इनकी जिंदगी के अंदर कोई मुश्किल नहीं है। अवाम को जिस वक्त हम जाके देखें बाजारों में उनके पास यानी वो चिंगची और रिक्शे देने के पैसे नहीं। यकीन करें यहाँ पर रोज लड़ाइयां होती हैं सामने हमारे मरी रोड के ऊपर कि वो लोग कहते हैं कि कल तो किराया 30 रुपए था, आज 50 कर दिया, परसों 60। वो मतलब लोग एक दूसरे के गले पड़ने के ऊपर आए हुए हैं। तो उसके अंदर ये कहना कि सारे मिल के बैठ के काम करेंगे और काम अच्छा हो जाएगा, आई एम सॉरी, इन पार्टीज की जो स्किल है इनको खुद अपनी डेवलप करनी पड़ेगी, जो इस वक्त नहीं है। इनकी जो टॉप टीम्स हैं उनके लोगों की स्पेशलाइजेशन वो नहीं है जो उनको दी गई है। कैपेसिटी वाला इशू। चले चंद साहब के साथ अच्छे आपने पॉइंट उठाया, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद चंद साहब जरा इसके ऊपर कैपेसिटी इशू के ऊपर जो आमिर गौरी ने किया ये सवाल पूछते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नदीम अफजल, चंद साहब, हसन खावर साहब, आमिर गौरी साहब मेरे मेहमान हैं। चंद साहब पहले तो कैपेसिटी वाला इशू जो आमिर गौरी साहब, देखिए पहले उनके ग्लाइटर मोड में जो उन्होंने कहा ना कि मैंने एक मीडिया टीम की तारीफ की है, वो मैंने इसलिए तारीफ की है कि देखिए ना हमने शहजाद अकबर को भी कैसा हीरो बना के पेश किया था वो फिर भाग गया। हमने कभी पता चलने दिया कि आजम खान और शहजाद अकबर गवर्नमेंट चलाते हैं, सियासी लोग काम चलाते हैं। ये हमारी कामयाब उस वक्त की पॉलिसी थी ना। तो हमने हसन खावर कितना कॉम्पिटेंट था कि उसने बुजदार साहब को भी अच्छे तरीके से हैंडल किया। तो ये इसलिए गौरी साहब आप हमारी तारीफ तो करें ना मीडिया मैनेजमेंट, और फिर ऐसे ऐसे चैनल हम देखें खुल के आज भी डट के खड़े हैं उनके साथ या कुछ दूसरी तरफ खड़े हैं, फिर ट्रेंड चला रहे हैं मीडिया के लोग जो एंकर हैं जो पार्टीज के साथ। देखें ये भी पहली दफा हुआ ना, ये भी तो उस वक्त की मीडिया टीम को क्रेडिट देना, उन्होंने लोगों को अपने साथ शामिल कर लिया, लोगों का न्यूट्रलिटी खत्म कर दी। तो अब अगली बात जो उनकी कैपेसिटी वाला इशू है, यकीनन देखें जी इसमें कोई झूठ नहीं है, मैं गौरी साहब की राय का एहतराम करता हूँ, बिल्कुल हमारा कैपेसिटी इशू है। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो मैकेनिज्म होना चाहिए, जिसमें इकोनॉमिक्स टीम होनी चाहिए, जिसमें पॉलिटिकल टीमें तो होती हैं, पॉलिटिकल कैथार्सिस भी, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होती है, हम पॉलिटिकल लोग दे दिया, ये कर दी, मीडिया शो में चले गए। लेकिन जो मईशत के लिए जो टेक्निकलिटीज जिस लेवल पे होनी चाहिए इस मुल्क में, क्राइसिस में, साउथ एशिया में जो हमारा अहमियत है हमारे मुल्क की, मैं समझता हूँ हम वाकई नहीं है पॉलिटिकल। मैं इस चीज पे एडमिट करता हूँ, मैं इसके ऊपर कोई आर्गूमेंट्स मैं आमिर साहब की बात से खाम खा के आर्गूमेंट्स तैयार करने शुरू कर दूं। पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे लोगों के कॉम्पिटेंट लोगों की गुंजाइश ही नहीं। देखिए दो चीजें, एक तो पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल लोगों को कभी इस टाइप, क्योंकि आप मैंने देखा है जो भी मईशत या इकोनॉमी के लोग होते हैं ना, वो हमेशा तोहफे में मिलते हैं, प्लांटेड होते हैं। ये पहली दफा खुशाइंद बात है। देखिए कैसर बंगाली साहब पीओ पार्टी के साथ थे तो थे, फिर उनको वो फिर चले गए, फिर हफीज शेख साहब हमें लाने पड़े, फिर वही हफीज शेख साहब पीटीआई के मेन रोल, शौकत तरीन साहब हमारे थे, वही शौकत तरीन साहब उधर थे। अब नून लीग ने चलो अपनी टीम थोड़ी सी बनाई है, लेकिन बैकडोर ब्यूरोक्रेसी तो वही होती है। तो ब्यूरोक्रेसी में असल कैपेसिटी नहीं है। पॉलिटिकल लोग का तो काम है ओवरसाइट करना, स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी भी नहीं है, स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी भी नहीं है। देखिए ना आप एक डीएमजी ऑफिसर या ऑडिट एंड अकाउंट्स अफसर या ओएमजी का, वो कभी लगा होता है पेट्रोलियम में, तो कभी फाइनेंस में होता है, कभी पोस्ट ऑफिस को हेड कर रहा होता है, तो कभी फिर वो आके प्लानिंग करना शुरू कर देता है। इस तरह नहीं होता। पूरी दुनिया में ब्यूरोक्रेटिक जो खान साहब के ऊपर अलमिया था, जो मुझे भी जाती तौर पर शिकवा था कि जो सबसे जरूरी काम है इस मुल्क में, वो हमारा ब्यूरोक्रेटिक मॉडल चेंज करने वाली बात। डॉक्टर इशरत साहब क्या करते रहे आपके साथ बैठ? डॉक्टर इशरत साहब फ्रॉड ही था सर, मैं तो सीधी बात कहूंगा। वो किताबें लिखते रहे, पहले मुशर्रफ दौर में भी उनके पास जो इल्म था उन्होंने अपनी किताबों की सूरत में दे दिया। अब उन किताबों को इम्प्लीमेंट के लिए ये जरूरी नहीं कि वो तामरग एडवाइजर ही रहे। उनकी ख्वाहिश यही थी कि मैं तामरग एडवाइजर हूँ,
तो आपने तो कैबिनेट में डॉक्टर इशरत साहब भी, फिर वो अरबाब शहजाद साहब भी, ये तो थे ये कि लेकिन अरबाब शहजाद साहब की तो खैर चलने को नहीं देता था, और डॉक्टर इशरत साहब कमेटी के सरबराह थे, फिर शाह शफकत महमूद साहब भी, क्योंकि ब्यूरोक्रेट ज्यादा थे और पॉलिटिशियन कम थे। ब्यूरोक्रेसी के लोग तो बड़े थे बैकग्राउंड के, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो है ना, ये ब्यूरोक्रेसी नहीं कर सकती। ये भी पॉलिटिकल लोगों को या प्राइवेट सेक्टर के लोगों को या अच्छे थिंक टैंक हो, ब्यूरोक्रेसी अपने इख्तियारात कैसे दे? नहीं तो वो करने भी नहीं जो देते ना रिफॉर्म politicians। आप कहें कि हम पुलिस में रिफॉर्म्स करते हैं, आईजी कमेटी का सरबराह बना दें, आईजी अपने इख्तियारात कम होने देगा? भाई आईजी के इख्तियारात नीचे डीपीओ तक, एएसपी तक, एसएचओ तक आएंगे तो रिफॉर्म्स होंगी। अब यहाँ तो कौन वाइस राय की लाइफ अपनी छोड़ना चाहता है? हम रिफॉर्म्स उनके जिम्मे लगा देते हैं। ये तो हसान खबर साहब का भी सब्जेक्ट है। हसान साहब, ये फेलियर नहीं रहा कि ये जो स्ट्रक्चरल हसान खबर साहब माशाल्लाह उनका बैकग्राउंड भी है, वो अगर मेरी बात से। जी हसान साहब। नहीं, चंद साहब, मैंने तो आपको पहले कह दिया कि चंद साहब की जो बात होती है वो बड़ा सोच समझ के बात करते हैं। देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं, मेरी जाती राय चंद साहब वाली है। ये नहीं हो सकता कि आपने जिसको रिफॉर्म करना है तो आप उसी से कहें कि रिफॉर्म करें। अगर लोगों के ऊपर ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, आपको लोगों की रिप्रेजेंटेशन लेनी चाहिए, थिंक टैंक्स लाने चाहिए, और लोग हैं ब्यूरोक्रेसी का व्यू भी लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उनसे अलग होकर उनको रिफॉर्म कर दें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सिर्फ उन्हीं को सौंप दें कि आप अपने आप को रिफॉर्म करें। मरीज तो अपना ऑपरेशन खुद नहीं कर सकता, वरना हार्ट सर्जन जब बीमार होते खुद ही अपना हार्ट ट्रांसप्लांट कर देते। एनीवे, देखिए, जो कैपेसिटी की बात है ना, इस मुल्क की, हमारे मुल्क में कैपेसिटी कम है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन मैं थोड़ा सा इस बात से इख्तिलाफ करता हूं कि हमारे मुल्क का जो मसाइल हल नहीं होते, उसकी वजह शायद कैपेसिटी से ज्यादा कुछ और है। और वो ये है कि हम लोग जो है ना, आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस की तलाश में रहते हैं। हमें लगता है कि बहुत शानदार बंदा आके हमें कोई ऐसी चीज बताएगा जो हमारे जहन में नहीं है। कुछ चीजों का इलाज आपके सामने है, लेकिन उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। अगर आपका सर्कुलर डेट ज्यादा है तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। अगर आपने डिस्कोर्स को रिफॉर्म करना है तो आपको लोगों को वहां से निकालना पड़ेगा, परफॉर्मेंस बेंचमार्क लाने पड़ेंगे, वहां पे यूनियनें एहतजाज करती हैं, जो भी ऑपोजिशन होगी वो उनके साथ मिल जाएगी। या आप टैरिफ को बढ़ाएंगे, एक हाथ से टैरिफ को बढ़ाएंगे तो डिमांड नीचे चली जाएगी। लेकिन ये सब जो भी काम तो मसाइल है वो आपके करने थे सामने ना, है। आपने इसी काम के लिए आए थे। स्ट्रक्चर रिफॉर्म डॉक्टर इशरत आपने लगा के रखा, स्टेट ओन इंटरप्राइजेस की जो ब्लीडिंग थी वो खत्म करनी थी, वो सब चीजें तो बढ़ती चली गई, कुछ नहीं हुआ। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, नहीं बढ़ती नहीं चली गई। पीआईए का लॉस 0 पे गया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन परफॉर्मेंस के ऊपर तो एक लंबी डिबेट है ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बात ये है कि तमाम सोल्यूशन जो होते हैं वो किसी भी हुकूमत के सामने होते हैं। सिर्फ बात ये होती है कि क्या हुकूमत की इतनी पसली है कि वो करने की पॉलिटिकल कॉस्ट बेयर कर सके। और हुकूमतों की जो हमारे मुल्क की सियासत है, ये पसली नहीं होती कि वो पॉलिटिकल कॉस्ट बेयर करें, वो ऑर्गेनाइजेशंस को लीन करें, वो लोगों को निकालें, ये नहीं होती। पहले चंद साहब ने एक बात की कि जी ऑपोजिशन जो होती है उसका किरदार ये सिर्फ ये नहीं होता कि उसने हुकूमत में आना है या उसका इंतजार करना है। जमहूरियत के अंदर ऑपोजिशन बड़ा अच्छा किरदार अदा कर सकती है। शैडो कैबिनेट वाली बात भी सही है, गाड़ी का दूसरा पहिया भी होता है। लेकिन मेरा चंद साहब से बसद एहतराम ये सवाल है कि पिछले 3.5 साल में जो दूसरा पहिया जो आज हुकूमत में पहिया है, ये सारा पहिया तो ऑपोजिशन का था। तो पिछले 3.5 साल में कहीं ऑपोजिशन ने उस पर मस्बत किरदार अदा किया? मैं बताता हूँ। अगर नहीं जी उसमें मेरी भी ओपिनियन है। जी चंद हसन साहब, नहीं, आमिर साहब की ले ले। जी आमिर साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें हसन, ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, ये किताबी बातें हैं इस तरह से कि अगर आपका जो उस वक्त बैठा हुआ हुक्मरान है वो ये कहे कि मैंने तो ऑपोजिशन के साथ बैठना नहीं, क्योंकि उसके जो लीडर हैं वो चोर हैं, वो डाकू हैं, ये मुल्क को लूट के चले गए हैं, खुद पार्लियामेंट के अंदर तशरीफ न लाएं। जिस वक्त हुकूमत में नहीं थे तो उस वक्त हमें बरतानिया की मिसालें दिया करते थे कि वहां पे मैं जिस तरह क्वेश्चन आवर है वो खुद आया करूंगा। आप खुद देख रहे हैं रिकॉर्ड में, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है कि खान साहब कितनी दफा पार्लियामेंट में आए थे और क्यों आए थे और क्या उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी। उसी तरह अगर फर्ज की आपकी जो अपोजिशन है वो या तो अदालतों में पेश हो रही हो, नैब के, यानी 3.5 साल अब, और मुशर्रफ साहब के भी आप जो है ना 9 साल मिला दें कि वो तमाम इल्जामात जो लगाए गए थे, अगर वो नैब से आगे जाके अदालतों तक पहुंचने नहीं थे और जैसे नहीं पहुंचे तो फिर ये सारे प्रोसेस के अंदर जो पैसा लगा है उसकी जिम्मेदारी किस पे होगी। देखें, अगर हुकूमत का काम सिर्फ ये हो खान साहब कहते हैं मेरे पास तो सिस्टम था ही नहीं ना, मेरे पास तो एक एफआईए थी, नैब मेरे कौन से कंट्रोल में है, फलानी। नहीं, मेरी बात सुने तारिक भाई, देखिए मेरी बात सुने। मेरे लिए जो सबसे खतरनाक 2 बातें पिछली हुकूमत की थी वो 2 थी।
ایک پرائم منسٹر صاحب کی ایڈمیشن جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان از رننگ تھرو ریمیٹنسز، یعنی کہ جو پاکستان کے مزدور باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں اس پہ پاکستان چل رہا ہے. یہ شرمناک بات ہے. اس کا مطلب پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹس جو ہیں وہ 25-26 بلین اور ریمیٹنسز 31 بلین. یہ شرمناک بات ہے. دوسری بات، جو فائنانس منسٹر تھے انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آئی کین کنفرم کہ پاکستان نیٹ امپورٹر بن چکا ہے کس چیز کا؟ فوڈ گرینز کا. یعنی اگر فرض کیا ہم اپنے لوگوں کو کھانے کے لیے خود خوراک پیدا نہیں کر سکے، 70% کا ایگریکلچر ملک ہے، تو یہ حکومت جس طرح آپ نے کہا نا کہ بیوروکریسی، میری بات سنیں، دیکھیں اگر پولیٹیشنز نے بھی وہی کام کرنا ہے جو ہم کر رہے تھے کہ بیماری تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کا کام علاج کرنا ہے، اور اگر آپ علاج نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے اس پر فوکس کریں بجائے اس کے کہ اپنے ساتھ جو دوسرے لوگ بیٹھے ہیں ان کو گندا کریں. آخر میں یہ کام طارق بھائی سیاستدانوں نے ہی کرنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اپنے پیر پہ تو کھڑے ہوں. دیکھیں میں اپوزیشن کی مثال دیتا ہوں حسان صاحب کو جلدی. جب پی ٹی آئی کا دھرنا تھا نون لیگ کے خلاف، پہلا دھرنا 2014، پیپلز پارٹی ساتھ کھڑی ہوگی نون لیگ کے، کہا کہ نہیں اسمبلی کا سیشن شروع ہو گیا. یہ ہوتی ہے اپوزیشن کا کردار سسٹم. جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، پی ڈی ایم میں بار کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا استعفے دینے ہیں تو پیپلز پارٹی ساتھ کھڑے ہوگی. اب میں نے خود خان صاحب کو کئی دفعہ ریکویسٹ کیا کہ آپ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ڈائلاگ کریں. بھائی جو ووٹ لے کے آ جاتا ہے وہ چور ہے، وہ کوئی اس کا مذہب ہے، کوئی اس کا فرقہ ہے. آپ جب اس کرسی پہ بیٹھا ہو اسمبلی کے اندر، آپ اس کا رائٹ ہے آپ اس کے ساتھ مذاکرات کریں، اس کا رائٹ ہے، یہ عوام کا حق ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کریں. اس کے ساتھ آپ لیڈر آف دی اپوزیشن اور حکومت جب ایک دفعہ ہاتھ ملا لیتے ہیں نا لائیو، قسم سے لوگ میں اعتماد، اسٹاک مارکیٹ اٹھ جاتی ہے، کاروباری طبقے کا اعتماد بحال ہو جاتا ہے. جب آپ ہر وقت لڑائی، آپ گالی گلوچ کرتے رہیں گے تو یہ چیز آپ لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کون ہے جو پولیٹیکل اپروچ کے خلاف ہے، جو پولیٹیکل میچورٹی سے دور ہے، جو عوام کے فائدے کے لیے. یہ صرف نہیں ہے کہ بیسیکلی جس سے آپ اپروچ اور میچورٹی کہہ رہے ہیں اسے پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ کرپشن کو چھپانے کا ایک جو ہے نا وہ ہے. سر یا تو آپ کرپشن چلو کرپشن ہی لے لیں، پھر آپ کہیں کہ آئیڈیل ٹیم ہو کہ آپ کی پارٹی میں کوئی کرپٹ نہ ہو، آپ کی کیبنٹ میں کوئی کرپٹ نہ ہو. آپ جوڈیشل ریفارمز، آپ نے 3 سالوں میں ججز میں کوئی کرپٹ نہیں رہنے دیا، جوڈیشل ریفارمز کر دی. آپ نے ایسے جرنیلوں کو آپ نے ٹھیک کر دیا، آپ نے میڈیا کو ٹھیک کر دیا. وہی اشتہارات آپ میڈیا کو دیتے رہے جو پچھلی حکومتیں دیتے رہی، وہی ماڈل اڈاپٹ کیا آپ نے. اسی طرح عوام کے پیسوں سے میڈیا پالیسی چلتی رہی، اسی طرح بیوروکریسی کو پروموشن، ڈبل پلاٹ، گریڈ بائی میں جانے کے بعد وہی ایک مخصوص ٹولہ بیوروکریٹک جو ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرتا ہے. وہی طریقہ، اگر میں ایک پارٹی میں چلا جاؤں تو میں مسیحا، دوسری میں پارٹی میں چلا جاؤں تو میں کرپٹ. یہ نہیں ہوتا. یہ دو میں نے بریک لینی چند صاحب ایک اور شارٹلی کامنٹ. کا اپوزیشن میں جب آپ تھے بلاول صاحب، اب فارن منسٹر ہیں، یہ طالبان سے مذاکرات ہو رہے تھے، بڑا سخت اسٹانس تھا، دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں. اب وہ پھر کہتے ہیں جی شاہ محمود صاحب کہتے ہیں جی اب ہو رہے نا مذاکرات، اب کیوں نہیں بولتے ہیں؟ دیکھیں شاہ محمود صاحب تو بڑا لمبا عرصہ وزیر خارجہ رہے ہیں. مذاکرات کریں، آپ قوم کے سامنے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کریں، قوم کو بتائیں کہ اس لیے ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور ہم ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اور کچھ چیزوں پہ میں سمجھتا ہوں بلاول کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا. اور وہ اس وقت میں بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ چیزیں اساس بڑی ہیں. یہ فورن پالیسی کا ایشو ہے، یہ اس طرح میڈیا پہ اوپن فورن ڈسکس میرے جیسے کم عقل آدمی کو کم از کم نہیں کرنا چاہیے. میں یہ کہوں کہ بلاول صاحب کا جو اپوزیشن میں موقف تھا بطور وزیر خارجہ، وہ کوئی بہت بڑا یو ٹرن نہیں لیں گے اس میں؟ سر میرے خیال میں نہیں لیں گے. چلے ٹھیک ہے، میں وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو آخری سیگمنٹ میں پنجاب کی صورتحال ڈسکس کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. حسان خاور صاحب، عامر قوری صاحب، ندیم افضل چند صاحب میرے مہمان ہیں. حسان خاور صاحب، نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر آپ کا مقابلہ کریں گے پنجاب بائی الیکشن میں، کیسا لگ رہا ہے ویسے؟ بالکل کریں گے جی. میرا تو خیال ہے کہ ہم سے زیادہ تو یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ووٹروں کے لیے وہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ پچھلے 30-35 سال انہوں نے کیا کیا ہے اور آج وہ کیا کر رہے ہیں. بہرحال یہ تو ان کے ووٹرز کی سوچنے کی بات ہے، میں تو نہیں سوچوں گا، لیکن میرے خیال میں یہ اچھا ہے. یہ بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ اس ملک کے اندر 2 ہی بڑے سیاسی طاقتیں ہیں، ایک یہ سارے ملکی ہیں اور ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے. تو بڑا اچھا میرے خیال میں مقابلہ ہوگا. اور اس وقت حکومت کی صورتحال بھی یہی ہے، حکومت کے اندر ساری جماعتیں ہیں اور ہم اپوزیشن میں ہیں، تو ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. یہ حسان صاحب کلیئرٹی کیوں نہیں؟ فواد صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں تو ہم اسمبلی میں آ جائیں گے. دوسری طرف کہتے ہیں جی اسمبلیوں سے تو ہمارے استعفے منظور کر چکے ہیں قاسم سوری صاحب، ہم وہ نہیں کریں گے.
फिर कहते हैं जी हम इलेक्शन डेट अनाउंस करते हैं तो हम ये चीज सोच सकते हैं, फिर पंजाब के बाई इलेक्शन हो उसमें भी जा रहे हैं, बाकी बाई इलेक्शन में भी जा रहे हैं, तो ये कंट्राडिक्टरी पॉलिसी नहीं नजर नहीं आती आपको? नहीं, कॉन्ट्रोडिक्टरी पॉलिसी नहीं है। देखिए बात यह है, सियासी जमात है ना, हम सियासत कर रहे हैं और इस वक्त हमारा जो मंजिल है वो ये और हमारा मुतालबा ये है कि फौरी और शफाफ इलेक्शन करवानी है। ठीक, अगर हमारे ख्याल में जो हमें स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है, जो हमें उधर से करीब लेके जाएगी, हमें अपने मकसद के हसूल की तरफ लेके जाएगी, वो अपनाएंगे। पंजाब में हम समझते हैं कि इंतखाबात हमें खाली नहीं छोड़ने चाहिए। वफाक पे हमारी पॉलिसी कोई शख्स डिसएग्री कर सकता है, लेकिन यह है कि हमने असेंबली में नहीं बैठना। लेकिन हमारा गोल यही है, ऐसा नहीं है कि हम अपने गोल से पीछे हट रहे हैं। तो हमारे ख्याल में ये हिकमत अमली हमारे लिए बेहतर है। गौरी साहब, ये वैसे तो मैं चंद साहब से पूछूंगा, लेकिन अलायंस नून लीग और पीपल्स पार्टी का ये डैमेज करेगा पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर, क्योंकि वो कहती थी कि जी हमारा मुकाबला होगा, वी विल रिप्लेस पीटीआई अगेंस्ट पीएमएलएन। तो अब जब ये मिल के लड़ेंगे इस सिनेरियो में, तो वक्ती तौर पे कोई नुकसान होगा आपको पीपल्स पार्टी को? देखिए, मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी को ये उम्मीद है कि जिस वक्त सारी वो सपोर्ट जो पिलर्स ऑफ सपोर्ट पीटीआई को दस्तयाब थे उनके साथ नहीं होंगे, तो शायद उनके पास चांसेस हों नए इनरोड्स बनाने के। इसलिए कि पंजाब की पॉलिटिक्स जो है, अगर मैं क्विकली इसको रैप अप कर सकूं, उसमें मुझे इस तरह लगता है कि पंजाब की पॉलिटिक्स जो है वो कोर और पेरिफेरी की पॉलिटिक्स है। यानी जो सेंट्रल हार्टलैंड है, जिसके अंदर जो है लाहौर है, फैसलाबाद है, सियालकोट है, गुजरांवाला है, ये सारे लोग जो हैं ये अभी तक पीएमएल नून के स्ट्रॉन्ग वोटर नजर आते हैं मुझे। इनकी प्रेजेंस है वहां पे, गुजरांवाला शामिल कर लें। और जो एरियाज हैं जैसा सदर्न पंजाब है, ये बाकी एरियाज हैं नॉर्दर्न पंजाब, इसके अंदर उनकी इतनी ग्रिप नहीं है, तो वहां चांसेस जरूर हैं। लेकिन अगर मैं इस तरफ ये कह सकूं कि देखें, ये जो बात हसान ने की ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे हम बार बार सुनते हैं कि शफाफ और साफ इलेक्शन, अभी सारी पार्टियां कहती हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछें तो साफ और शफाफ इलेक्शन वो होंगे जिसमें एस्टैब्लिशमेंट का, जिसमें फौज का कोई रोल नहीं होगा। यानी उनको ये रोल ना दिया जाए मेहरबानी करके, इसलिए कि फिर वो अदारा जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। कहते हैं हमें आप रहने दें, फिर सियासतदान फिर घसीट के लेके आते हैं उनको। देखिए ना, फिर इसका मतलब है अगर हमने इलेक्शन कमीशन को और उसके साथ एलाइड बॉडीज जो इलेक्शन कराएंगी, इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, उसके नीचे सारे लोग हैं पहले बैठे हुए, ये पहले भी जाके वोट ही गिनने हैं ना। फिर कैपेसिटी का इशू गौरी साहब, जो आपने पहले पॉलिटिशियंस के लिए कहा था, वो इदारों में भी तो है। इदारों को उस तरह मजबूत नहीं किया जाए होंगे, तो अगर जो कोई अदारा एक रह गया ना, उसको एक साइड रखें, उनकी जो भी गुडविल है उसको भी खराब ना करें, और साथ साथ आप कैपेसिटी शो करें कि हम ये इलेक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि सारी पार्टियां इस पे कॉमन है उनका एजेंडा कि साफ इलेक्शन हो। तो अगर वो करवा लें आज, मतलब नवंबर में करवाने, जब भी करवाने, लेकिन ये इलेक्शन साफ वो अदारे कराएं जिनकी जिम्मेदारी है, वो ना कराएं जिसकी जिम्मेदारी नहीं है। चंद साहब, जाले को फिर सुला रहे हैं पंजाब के अंदर, नून के साथ अलायंस करेंगे, डैमेजिंग होगा। है बड़ा मुश्किल फैसला, सच्ची बात है, और ये बात ठीक है, लेकिन ये मैं इत्तेफाक नहीं करता कि सारे दो तबके हैं, दो तबके नहीं है। टाइम बदलता रहता है। अब एस्टैब्लिशमेंट का रोल अगर पुराने वाला ना हुआ तो आपको वक्त साबित करेगा कि तबके दो ही होंगे, फिर राइट की भी सियासत होगी, लेफ्ट की भी सियासत होगी, और प्रोग्रेसिव सियासत भी होगी। एक्सट्रीमिस्ट अपनी जगहों पे होगी, जो लोग उस रुझानात रखते हैं वो साइड पे होंगे, वो यकीनन ऐसी फोर्सेस से भी इताद करेंगे जो उनके वोट के लिए जो इस्तेमाल के। लेकिन बड़ा डायनेमिक्स चेंज हो गया सियासत के। जैसे पीपल्स पार्टी पहले गई पंजाब में हुकूमत में, ये नून लीग के साथ में थी, तो आपके लोग कहते थे कि जी बड़ा हमें नुकसान हुआ इनके साथ बैठने का और चीजों में। देखिए, पीपल्स पार्टी का जो वोटर था ना जी, देखिए एक हकीकत है कि नून लीग को लंबा से इख्तिदार में रही है, और नून लीग के विक्टिमाइजेशन का शिकार भी रहे, और एक फोर्सेस थी। लेकिन सिर्फ नून लीग नहीं थी, उसमें जुडिशरी भी थी, उसमें एस्टैब्लिशमेंट भी थी, उसमें पूरा एक मेज बिछाया गया था। अब ऊपर उसी मेज का पार्ट, उसी जी 2013 की बात, ये मैं इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद से लेकर अब तक की बात कर रहा हूँ, 1988 से लेकर उसके बाद फेजेस में ये इदारे ऐसा भी तो होता रहा कि कुछ कभी भी पीपल्स पार्टी के साथ नहीं थे। लेकिन नए प्लेयर आ गए ना, नए बच्चे, स्टेप सिस्टर, स्टेप ब्रदर, नए हिस्सेदार पैदा हो गए तो अब वो एक नया हिस्सेदार पैदा नहीं। अब कोई ठंडी हवाएं आ रही हैं इस तरफ से? देखिए, अब मेरे ख्याल में उस इदारे ने फैसला किया है कि वो अपना रोल जो है वो उनको ये अल्टीमेटली, देखिए ना, पिछली अदवार में पॉलिटिकल हुकूमतें जो भी गलत काम करती रही हैं उसका जो असर है वो उस इदारे पे भी पड़ता रहा है। तो अब ये उन्होंने बहुत अच्छा सोचा है कि हम पीछे हट जाएं। कितनी देर? मुझे लगता है कि अब वो आगे नहीं आएंगे, किसी सूरत भी नहीं आएंगे। ख्वाहिश है कि उम्मीद है? नहीं, ख्वाहिश भी है, उम्मीद भी है, और दुआ भी है।
क्योंकि होता ही है कि वो कर और देते हैं। मेरी पॉलिटिकल सेंस भी कहती है कि अब वो नहीं आएंगे, क्योंकि अवाम के अंदर भी देखें एक ऐसी अवेयरनेस आ चुकी है। यहाँ तो आपको खुल के सामने आना पड़ेगा चीजों को कंट्रोल करने के लिए। देखिए, आप एक मॉडल देख लिया आपने ना, असेंबली चला के भी देख ली, वोटिंग के तक सारा तक, हुकूमतें बनाने तक, हुकूमतें गिराने तक, लोगों को आजाद लोगों को शामिल करने तक, सारा कुछ करके आपने देख लिया। अल्टीमेटली पॉलिटिकल हिस्से की गालियां भी आपको पड़ी, और जो अच्छा काम हुआ वो कहते हैं हम करते हैं, जो बुरा काम हुआ जी वो करने नहीं देते। हम इशारों के नारों में बात करते हैं कि वो करने नहीं देते जी। तो मेरे ख्याल में अब इसके ऊपर डायलॉग भी होना चाहिए। कुछ चीजें हैं जिसमें उनका, मैं समझता हूँ, स्टेक उनके लाजमी है, फॉरेन पॉलिसी है, सिक्योरिटी के इश्यूज है, नेशनल। ये डैमेज रिपेयर तो नहीं है खाली? सर ये आप अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं, मुझे इतनी नहीं आती, ये पता नहीं डैमेज रिपेयर है या क्या है, मुझे तो इसकी नहीं समझ आती। लेकिन मैं तो आपको, हसन खबर साहब, आपके लिए डैमेज और चंद साहब के लिए रिपेयर तो नहीं है ये मामला? चले एक लाइट कमेंट मुझे करना है। जी गौरी साहब की बात सुन ले जरा। जी गौरी साहब, मैंने कहा एक लाइटर कमेंट मुझे करना है कि देखें कि जिस वक्त आज तक अगर सियासत को रखा जाए ना, जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है उसके अंदर एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था, नेशनल लेवल पे चला गया। वो था उस एक फिल्म का, मौला जाटका के नवा आया सोनिया। तो बहुत सारे लोग जो नए आए हैं ना, उनके लिए अब बात जो है, जिस पॉलिटिकल चैलेंज में, तो जो दूसरा उतना बड़ा डायलॉग है जो एक नॉन फिल्म इंडस्ट्री का आदमी ने लिखा है, उसका नाम है चंद साहब। उन्होंने कहा था मुख्तियारा कल बद और हुकूमत 10 दिन नहीं पई। इतनी बड़ी बात हो चुकी है कि अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये जो 70 साल एक्टर है ना सारे, वो गौरी साहब, ये जो हुकूमत का लफ्ज है ना, अब इसकी तशरीह भी बड़ी जरूरी है कि हुकूमत से मुराद चंद साहब की क्या थी कि गल बच गई है, हुकूमत 10 दिन नहीं पई, तो अब पता चलेगा कौन सी हुकूमत 10 दिन नहीं पई है। हसन खबर साहब, देखिए बात यह है कि मैं तो चाहता हूँ इस मुल्क में जमहूरियत पन पे, जमहूरियत मजबूत हो और किसी किस्म का कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ना हो। लेकिन जब तक हमारे मुल्क में सियासतदान जो जगह छोड़ेंगे तो इदारे हमेशा आते रहेंगे। किसी एक दो शख्स के दौर में लीडरशिप चेंज हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में ये जगह सियासतदान खुद छोड़ते हैं जब फिर कोई इदारा को इंटरवीन करना पड़ता है। ये ऐसे नहीं होता कि वो खुद जाके जगह नहीं। ठीक है चंद साहब, लास्ट बात ये कि हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा, इस हुकूमत के, आपकी हुकूमत के? देखिए, सबसे बड़ा खतरा जो है मैं समझता हूँ इस वक्त, खतरा तो नहीं कह सकते, मईशत ही है, इकोनॉमी, मईशत, माशी चैलेंज जो है ना, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। गौरी साहब, क्या चैलेंज हुकूमत के लिए सबसे बड़ा? ये जो अब इस वक्त की हुकूमत है, उसके लिए तो चांद साहब ने कह दिया कि देखें जो कमोडिटीज और यूटिलिटीज की प्राइसेस हैं, उसको कंट्रोल करना जो है वो सिर्फ वही गेम है। हसन साहब, पॉलिटिकल चैलेंज फॉर पीटीआई, लास्ट कमेंट सर। देखिए, पॉलिटिकल चैलेंज इस वक्त पीटीआई पे ये है कि हमने हर महाज पर इनका मुकाबला करना है, लेकिन मैं सिर्फ गवर्नमेंट के लिए चैलेंज मेरे ख्याल में मईशत से ज्यादा इनका और आपका अपना हाउस इन ऑर्डर करना आपके लिए बड़ा चैलेंज नहीं है, जो आपकी सूरत हाल है पार्टी की? क्योंकि जब हुकूमत में रह के आपकी पार्टी तो स्ट्रक्चरली काफी ज्यादा डैमेज हुई है, जो हमें नजर भी आया है इसके अंदर। नहीं, देखिए, कुछ हमेशा हर पार्टी के अंदर कुछ मौसमी बटेरे होती हैं, मौसम की तब्दीली के साथ उड़ जाती हैं। अच्छा, ये तो इस मुल्क की सियासत का आपको उम्मीद है कि अभी और बटेरे उड़ेंगे आपके पास से? नहीं, बटेरे सब उड़ चुके हैं। अच्छा, चले ठीक है। हसन खबर साहब, आमिर गौरी साहब, चंद साहब, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।